Good morning, friends. Today's my topic is tablet. Myself, Mr. Ashish Jain, Associate Professor, Regional College of Pharmacy, Jaipur. Introduction of tablet. Tablets are solid, flat, or biconvex discharge unit dosage form prepared by compressing a drug or a mixture of drugs with or without diluents. टेबलेट क्या होती है? सॉलिड डोजेज फॉर्म, फ्लैट बाइकॉन्वेक्स डिशेज हो सकती है, यूनिट डोजेज फॉर्म होती है, प्रिपेयर्ड बाय कंप्रेसिंग ए ड्रग, जब एक ड्रग को अपन कंप्रेस करते हैं, और ए मिक्सचर ऑफ ए ड्रग, किसी ड्रग के मिक्सचर को अपन जब कंप्रेस करते हैं विथ, उसके अंदर अपन या तो डाइल्यूएंट्स या विदाउट डाइल्यूएंट्स अपन उसको कंप्रेस करते हैं तो टेबलेट बनती है। अपन ये भी कह सकते हैं कि टेबलेट में बी डिफाइंड एज द सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म of medicaments or medicament with or without diluents and prepared either by molding or by compression. They are available in different size, shape, weight, potency depending on number of medicinal substances and intended mode of administration. अलग अलग साइज की होती है, शेप की होती है, अलग वेट की होती है, पोटेंसी अलग होती है, जो डिपेंड करती है नंबर ऑफ मेडिसिनल सब्सटेंसेस पे। It is the most popular dosage form, and 70% of the total medicine dispensed in the form of tablet. अगर अपन बात करें टोटल पॉपुलर डोजेज फॉर्म की, तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है टेबलेट। 70% ऑफ द टोटल मेडिसिन, जितनी भी मेडिसिन है उसकी 70% टेबलेट फॉर्म में है, डिस्पेंस इन द फॉर्म ऑफ टेबलेट। अलग अलग वेरी हार्डनेस, थिकनेस, डिसइंटीग्रेशन एंड डिसोल्यूशन कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग हो सकते हैं टेबलेट के। नेक्स्ट आता है जनरल आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स या जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द टेबलेट। A tablet should have elegant characteristics during the identification and free from defects like chips, cracks, discoloration, and contamination. Should have sufficient strength to withstand mechanical shock during its production, packaging, shipping, and dispensing. The tablet must be able to produce predictable and desirable effects, and it does not cause any harmful allergic effects on the body. किसी प्रकार का कोई हार्मफुल इफेक्ट शो नहीं करती अगर प्रिडिक्ट और डिजायरेबल इफेक्ट हो तो टेबलेट का। मस्ट हैविंग द केमिकल स्टेबिलिटी फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन so as not to follow alteration of the medicinal agents, not having the unpleasant smell, taste and color. नेक्स्ट बात करते हैं अपन एडवांटेज ऑफ द टेबलेट। दे आर इजी टू कैरी, easy swallowed, and having attractive in color. Unpleasant taste and smell can be masked by sugar coating and film coating tablet. It is higher the compact, so its packaging and transporting is very easy. इसकी पैकिंग और ट्रांसपोर्टिंग बहुत ही easy होती है। They provide prolonged stability of medicaments. They maintain the accuracy of dose. डोज की accuracy को ये proper maintain करती है। Handling and transporting इसकी easy होती है। Attractive in appearance. नेक्स्ट आता है सम ऑफ द tablets are divided into two halves and quarters by drawing lines during manufacturing to facilitate breakage whenever a fractional dose is required. Cost is lowest as compared to other oral dosage form. अगर अपन दूसरी डोजेज फॉर्म की बात करते हैं तो इसकी जो कॉस्ट होती है वो बहुत ही लो होती है, तो ये इसके एडवांटेज हुए। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके कुछ डिसएडवांटेजेज ऑफ टेबलेट। Some drugs cannot be compressed because their low density and amorphous nature. कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जिनकी लो डेंसिटी और एमोर्फस नेचर के होने के कारण उनको अपन कंप्रेस नहीं कर सकते। Drugs with poor weighting, slow dissolution, and large dose are difficult to convert into tablet. Poor weighting properties, slow dissolution और large dose होने के कारण डिफिकल्टी होती है उनको टेबलेट्स के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। डिफिकल्ट टू स्वेलो इन केस ऑफ चिल्ड्रन एंड अनकॉन्शियस पेशेंट। जितने भी अपने चिल्ड्रंस होते हैं और अनकॉन्शियस पेशेंट जिनको होश नहीं है, उन पेशेंट्स को भी टेबलेट को स्वेलो करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है।
बिटर टेस्ट एंड ऑर्डर आर इनकन्वीनियंट फॉर द पेशेंट। और कई टेबलेट ऐसी होती है जिसका टेस्ट बड़ा ही बिटर होता है, इस वजह से भी उनको इनकन्वीनियंस फॉर पेशेंट के लिए इनकन्वीनियंट होता है टेबलेट को लेना। नेक्स्ट, सम tablets are hygroscopic in nature, so it is deteriorated easily by the environmental condition. नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्लासिफिकेशन ऑफ टेबलेट। क्लासिफिकेशन ऑफ टेबलेट, तो 5 टाइप्स का क्लासिफिकेशन अपन यहाँ देख रहे हैं। तो फर्स्ट वन इज ओरली इंजेस्टेड टेबलेट। ओरली इंजेस्टेड टेबलेट के अंदर कंप्रेस टेबलेट, मल्टीपल कंप्रेस टेबलेट, लेयर टेबलेट, सस्टेंड एक्शन टेबलेट, एंट्रिक कोटेड टेबलेट, जिलेटिन कोटेड टेबलेट, शुगर कोटेड टेबलेट, फिल्म कोटेड टेबलेट एंड च्यूएबल टेबलेट्स। ये सारी की सारी टेबलेट कैसी है? ओरली इंजेस्टेड टेबलेट। नेक्स्ट आता है ओरल कैविटी यूज टेबलेट। जो कैविटी के थ्रू अपन कौन कौन से ले सकते हैं? तो बकल टेबलेट, सबलिंगुअल टेबलेट्स, लोजेंजेज एंड डेंटल कॉन्स। नेक्स्ट आता है टेबलेट एडमिनिस्टर्ड बाय अदर रूट्स। इसके अंदर इम्प्लांटेशन टेबलेट एंड वेजाइनल टेबलेट्स। टेबलेट्स यूज टू प्रिपेयर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के साथ में कौन कौन से अपन टेबलेट को प्रिपेयर कर सकते हैं? तो उनमें आता है इफरवेसेंट टेबलेट, डिस्पेंसिंग टेबलेट, हाइड्रो हाइपोडर्मिक टेबलेट एंड टेबलेट ट्राइचुरेट्स। एंड लास्ट है बेस्ड ऑन द एक्शन या मॉडिफाइड टेबलेट अपन लोग को कहेंगे, जिसके अंदर आती है सस्टेन रिलीज, एक्सटेंडेड रिलीज, फास्ट डिजोल्विंग एंड डबल लेयर टेबलेट। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, ये हुआ इसका क्लासिफिकेशन। आई रिपीट अगेन, 5 टाइप्स का इसका क्लासिफिकेशन था। ओरली इंजेस्टेड टेबलेट, ओरल कैविटी यूज टेबलेट, टेबलेट एडमिनिस्टर्ड बाय अदर रूट, टेबलेट यूज टू प्रिपेयर सॉल्यूशन, बेस्ड ऑन द एक्शन या मॉडिफाइड टेबलेट। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसकी इंग्रेडिएंट्स यूज्ड फॉर द टेबलेट्स प्रिपरेशन। कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स काम में आते हैं जब अपन टेबलेट प्रिपेयर करते हैं? तो फर्स्ट आता है एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। किसी भी टेबलेट को बनाने के लिए एपीआई की रिक्वायरमेंट सबसे पहले होती है। जब तक अपने पास एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट नहीं होगा, अपन टेबलेट को फॉर्म नहीं कर सकते। तो दीज आर द एक्चुअल केमिकल कंपाउंड विच रिएक्ट्स with the body constituents and shows their effect on required area. एक्चुअल केमिकल कंपाउंड, जिस ड्रग का अपन टेबलेट फॉर्म कर रहे हैं उसका एक्चुअल केमिकल कंपाउंड विच रिएक्ट्स विद द बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट, जो रिएक्ट करे किससे? बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट से, एंड शो देयर इफेक्ट ऑन रिक्वायर्ड एरिया। नेक्स्ट आता है एक्सिपिएंट्स या एडिटिव्स। These are the inert material which are helps in preparation of tablet and maintain their originality. ऐसे इनर्ट मटेरियल हैं जिनकी हेल्प से अपन प्रिपेयर टेबलेट की प्रिपरेशन करते हैं एंड मेंटेन द उसकी ओरिजिनलिटी को मेंटेन रखते हैं। एक्सिपिएंट्स डज नॉट हैव एनी प्रॉपर्टीज टू अल्टर द केमिकल रिएक्शन कंपोजिशन ऑफ द एपीआई। एपीआई अभी बताया एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं? केमिकल के साथ रिएक्शन करके और एक्टिव फार्मास्यूटिकल कंपोजिशन में इसको प्रिपेयर करते हैं। तो ये दो, पहला तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट और दूसरा एक्सिपिएंट्स या अपन उसको कहेंगे एडिटिव्स। ये दो ऐसी इंग्रेडिएंट्स है जो टेबलेट को प्रिपेयर करने के लिए अपन को मेनली इनकी जो रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये अपन ने जनरल इंट्रोडक्शन देखा टेबलेट का, जिसके अंदर अपन ने देखा इंट्रोडक्शन ऑफ टेबलेट, आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स या जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ टेबलेट, advantage of tablet, disadvantage of tablet, then classification of the tablet, 5 टाइप्स का होता है, और then ingredients used for the tablet preparation। टेबलेट प्रिपरेशन करने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स को अपन को जरूरत होती है? तो दो प्रकार के होते हैं, एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एंड सेकंड एक्सिपिएंट्स या एडिटिव्स। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करेंगे एक्सिपिएंट्स कि कौन कौन से एक्सिपिएंट्स अपन को टेबलेट के अंदर रिक्वायर्ड है, वो अपन आगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। ओके, थैंक यू।